آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ مصیبتوں کو موقع بنائیے. Create an opportunities in the difficulties. سمسیاؤں کو اوسر بنائیے. It was raining season یعنی برسات کا موسم تھا. بادلوں نے آسمان پر گھنی چادر تان رکھی تھی. Suddenly heavy rain started یعنی اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی. ساری رات بارش ہوتی رہی. صبح اٹھ کر لوگوں نے دیکھا کہ گاؤں کے آخری سرے پر ایک نشیبی پٹی کو برساتی پانی نے اپنا راستہ بنا لیا ہے. Rain water has made its way to a low-lying area اور وہ ایک نہر کی صورت اختیار کر گئی ہے. دیکھنے والوں نے سوچا کہ 4-5 دنوں کی بات ہے, پھر پانی اتر جائے گا. لیکن جب ہفتہ بھر بعد بھی پانی کی روانی جاری رہی, then the problems has got really serious کیونکہ گاؤں والوں کی آمد و رفت اسی راستہ سے ہوتی تھی اور اب نہر بن جانے کی وجہ سے زندگی رک سی گئی. دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا سوچ رہا تھا, گاؤں والوں نے اس نہر کو تو پار کرنا ہی ہے. In this time there is no sources available for crossing the river یعنی اس وقت کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. So why not arrange a boat and the problems for river crossing has been solved یعنی دریا پار جانے کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن کچھ ہی دنوں میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا. سواریوں کی تعداد زیادہ تھی اور کشتی ایک. چنانچہ کشتی والا ایک بار پھر ایکٹیو ہو گیا اور اس آس پاس کے علاقوں سے 8-10 ملاحوں کو ڈھونڈا. He provided them boats انہیں کشتیاں فراہم کی اور یوں اس شپنگ کمپنی کا وہ CEO بن کر کام کی نگرانی کرنے لگا. اسی گاؤں میں ایک ناؤ مرمت کرنے والا بھی موجود تھا. اس نے دیکھا کہ کشتیوں کا کاروبار بڑھ گیا ہے اور ان میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے, تو اس نے بھی دریا کا رخ کیا. Then he started repairing and manufacturing the boats یعنی کشتیوں کی تعمیر و مرمت کے ساتھ ساتھ نئی کشتیاں بنانے لگا. اس سارے پس منظر میں ہوٹل والا بھی پیچھے نہیں رہا. اس نے گاؤں کے 4-5 آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا. دریا کنارے ایک خوبصورت سا چھپر ڈال کر میز کرسیاں لگائیں اور فش پوائنٹ بنا کر تازہ مچھلیاں فرائی کر کے بیچنے لگا. کچھ دنوں بعد ایک انجینئر کی نظر اس دریا پر پڑی. Then he thought this river cannot be crossed with heavy goods. A bridge has to be built here. اس نے سوچا بھاری سامان کے ساتھ اس دریا کو پار نہیں کیا جا سکتا, اس پر پل بننا چاہیے. چنانچہ کچھ ہی دنوں میں اس نے حکومت سے کنٹریکٹ لیا. سیمنٹ, کنکریٹ, سریا آ گیا. بیسیوں کی تعداد میں مزدور اور راج کام پر لگ گئے اور مختصر ٹائم میں برج بھی بن گیا. جولائی کی ایک طوفانی رات میں آنے والی ریبیلین اگرچہ گاؤں والوں کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گئی تھی. بٹ دوز ہو ویئر وائز لیکن جو عقل مند تھے اور جو مصیبت کو موقع بنانا جانتے تھے, they know how to create the opportunities in the difficulties. انہوں نے اس زحمت کو اپنے لیے رحمت بنا دیا اور اسی کی بدولت زندگی کو مزید آسان بنایا. آپ کو مارچ 2020 تو یاد ہوگا جب دنیا بھر میں کورونا نے سر ابھارنا شروع کیا تھا اور پھر اچانک شدت اختیار کر لی. پوری دنیا لاک ڈاؤن کی زنجیر میں بندھ گئی. کاروبار ٹھپ ہو گئے, انڈسٹریز بند ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑی بڑی کمپنیاں بینکرپٹ ہو گئی. اس صورتحال نے عام آدمی کو شدید انداز میں متاثر کیا. اس اندوہناک صورتحال میں ہر شخص بوکھلا گیا. لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس مشکل سے نمٹنے کے لیے ان کے ذہن میں مختلف طریقے بھی آتے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص ای کامرس یعنی آن لائن بزنس پر منتقل ہو گیا اور اس میڈیم نے
रिपोर्ट यह भी बताती है कि जिन लोगों का कारोबार कोविड-19 से पहले ऑनलाइन दस्तयाब था, वो हेवी फिनेंशियल लॉसेस से काफी हद तक महफूज रहा, बल्कि उन्होंने इस कठिन दौर में भी काफी तरक्की की। सड़क पर चलते हुए इंसान के सामने अगर बड़ा पत्थर आ गिरे तो वह इंसान बड़ा बेवकूफ होगा जो पत्थर को टकरे मारकर रास्ते से हटाना चाहे। अक्लमंद इंसान ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो कोई मुतबादिल रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा और ऐन मुमकिन है कि दूसरे रास्ते पर उसके लिए ज्यादा मौके और फवाइद हों। मे बी देयर मोर अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर देम। यही मिसाल इंसान की जिंदगी में आने वाली मुश्किल की होती है। अगर आपके सामने मुश्किलात का इतना भारी पत्थर आ गिरा कि उसके आगे आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, then you have a taste of your intellect and emotion। आपका माइंडसेट ही अब तय करेगा कि आपने इस रुकावट को द एंड समझना है या एक नई शुरुआत, और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ न्यू फेज। दुनिया भर में पॉपुलर किताब द 5 AM क्लब का एक बेहतरीन सेंटेंस है कि मैं आसान जिंदगी की ख्वाहिश नहीं करता। आई डोंट वांट एन इजी लाइफ, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट और पावर नहीं है। गिव मी अ चैलेंजिंग लाइफ, जो मेरे अंदर का बेहतरीन बाहर लाए और उसके लिए मुझे डिटर्मिनेशन दे। ये सब दर हकीकत इंसान को झंझोड़ने के लिए आते हैं और इसी में इंसान की बेहतरीन एबिलिटी बाहर निकलती है। लेकिन ये तब होगा जब इंसान ग्रोथ माइंडसेट का हामिल हो। ऐसे शख्स की जिंदगी में इख्तिताम नहीं होता, बल्कि वह रास्ता बदल बदल कर अपनी मंजिल पर पहुंचता है। उसके दिलो दिमाग पर मायूसी कब्जा नहीं जमाती। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन हिमसेल्फ एंड हिज कास्ट, और यही यकीन उसकी बड़ी से बड़ी आजमाइश में भी सुरखरू करा देता है। माइंड सेट के लिए दो चीजें बेसिक स्टेटस रखती है, यकीन और सोच। बिलीफ एंड थिंकिंग। व्हाट कॉन्फिडेंस डू यू हैव? अगर आप ये यकीन रखते हैं कि जिंदगी में हर चीज सीखी जा सकती है तो आपका माइंडसेट करेक्ट है। लेकिन अगर आपका यकीन यह है कि सीखना मुश्किल है तो फिर आप चाहे जो भी कोर्स कर लें या डिग्री ले लें, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। यकीन का अगला मरहला यह है कि जिंदगी में आने वाली मुश्किल और रुकावट को आप फुल स्टॉप समझते हैं या फिर मामूली सा स्पीड ब्रेकर। अगर मामूली तकलीफ पर भी आपके हाथ पैर फूल जाते हैं और आप हिम्मत हार जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप फिक्स्ड माइंडसेट के हामिल हैं। ऐसा शख्स हर मसले पर यह फैसला कर लेता है कि अब बस जिंदगी खत्म हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है। रात के आने का मतलब मायूसी थोड़ी होती है, वो तो सुबह के उजाले का पेश खेमा होती है। और इसके बरअक्स ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा हर मुश्किल में भी अपने लिए मौका ढूंढ लेता है। जिंदगी के सफर में अगर रास्ता पुरमशक्कत भी हो जाए तो इससे घबराकर सफर नहीं छोड़ता, बल्कि चलना जारी रखता है। गो के उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसके पसीने छूट जाते हैं और रगें तन जाती है, लेकिन इस मुश्किल को इख्तिताम नहीं, द एंड नहीं, बल्कि अपने आसाब की मजबूती का जरिया बनाता है। क्योंकि इसको यकीन होता है कि जिंदगी में किसी भी मुश्किल का मतलब द एंड नहीं, बल्कि हर मकाम से आगे एक और मकाम मुंतजिर होता है। और ज़ौक़े सफर ना हो तो जीने का मजा है और ना ही फायदा। माइंड के साथ यकीन यानी बिलीफ का एक गहरा ताल्लुक है। इंसान का अपने आप पर यकीन कि हाँ मैं कर सकता हूं, या फिर किसी उस्ताद या सीनियर का उसके कंधे पर थपकी देकर कहना कि बेटा तुम बहुत आगे जा सकते हो, दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान के पास यस आई कैन का यकीन होता है और उसी की बदौलत वो खुद को और दुनिया को बदल सकता है। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला आई कांट के कुएं में कैद होता है। दूसरा यकीन यह है कि मैं जो इस जमाने में मौजूद हूं मैं वैसे नहीं आया, बल्कि आई वॉज बर्न फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि मैं किसी खास मकासद के लिए पैदा किया गया। इंसान का यह यकीन जितना सॉलिड होता है उतना ही वो जिंदगी में संजीदा होता है और अपने मकसद को तलाश करने की जुस्तजू करता है। तीसरा यकीन यह है
कि गलतियों का मतलब सीखना होता है। इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाबी के मेराज पर पहुंचे हैं वो आखिर इंसान ही थे, और मैं भी इंसान हूं। मैं भी अगर अपनी गलतियों की इस्लाह कर लूं तो उनसे बढ़कर कामयाब हो सकता हूं। प्रैक्टिस, मश्क से ही इंसान कमाल की तरफ बढ़ता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता वो तरक्की भी नहीं कर सकता। Who does not admit his mistake cannot make progress। दरअसल ये उसकी अना का मसला होता है। This is the problem for अना उसको कहती है कि तू बिल्कुल ठीक है, तुझे गलती तस्लीम करने की जरूरत ही नहीं है। यकीन जाने हमारी सोसाइटीज का सबसे बड़ा मसला गरीबी नहीं है बल्कि अना है। ये अना ही है जो इंसान को दरगुजर से दूर, फॉरगिवनेस से दूर और बदला लेने पर उकसाती है, जबकि अना से खाली हम्बल इंसान को अल्लाह हमेशा नवाजता है। सुराही भी पैमाने को तभी भरा करती है जब वो झुक जाती है। माइंडसेट का दूसरा बुनियादी रुकन, दूसरा बुनियादी मेंबर सोच है, और ये वो ख्याल होता है जो इंसान के जहन में खुद ब खुद आता है, विच कम्स इनटू माइंड ऑटोमेटिकली। और दरअसल यही इंसान की असलियत होती है। अब अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, अपने आप को कामयाब सोचते हैं या नाकाम, यू आर थिंकिंग योर सेल्फ सक्सेस और अनसक्सेस, इन तमाम का ताल्लुक इस बात से है कि क्या आप सुनते हैं, क्या आप पढ़ते हैं और आप क्या देखते हैं। जो भी आपके दिमाग में इन होता है आउट भी वही होता है। कामयाब होने के लिए जरूरी है कि इंसान कामयाब लोगों की कहानियां पढ़े और सुने, क्योंकि जब इंसान अपने जैसे इंसान को कामयाब होता हुआ देखता है तभी उसका अज़्म बढ़ता है, कमिटमेंट स्ट्रांग होता है। अलमिया यह है कि आज के मुआशरे में डीमोटिवेशनल स्पीकर हर जगह पाए जाते हैं, और जो भी इंसान कुछ नया कदम उठाना चाहता है ये लोग कहते हैं ये काम तुम्हारे बस का नहीं, तुम कर ही नहीं सकते। और यूं एक इंसान के बुलंद अज़ाइम, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मिट्टी में रुल दिए जाते हैं। किस्सा मशहूर है कि मेढकों का एक ग्रुप जा रहा था। बारिश हुई थी, जमीन कीचड़ से भरी हुई थी। अचानक एक फिसला, दूसरा उसको बचाने के लिए लपका तो भी फिसल गया, और गिरते गिरते सभी नीचे कुएं में जा गिरे। अब सबने बाहर आने के लिए जोर लगाना शुरू किया। इतने में जंगल से दूसरे मेढक भी आ गए और कुएं के मंडेर पर बैठकर उन्हें आवाज देने लगे। कुएं में मौजूद मेढकों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो निकल ना सके और एक एक करके वापस पानी में गिर गए। लेकिन एक मेढक ऐसा था जो बार बार कोशिश कर रहा था। ऊपर वाले मेढकों ने शोर मचाना शुरू किया, तू नहीं निकल सकता, देख बाकी सारे भी नीचे पड़े हैं, ये तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन मेढक मुसलसल जद्दोजहद कर रहा था और एक लंबी कोशिश के बाद बिलाखिर वो कुएं से निकल आया। बाहर मौजूद मेढक तो साइलेंट हो गए। जब वो बाहर निकल आया सब चुप हो गए। उन्होंने उससे उसकी बहादुरी की वजह पूछी तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि वो बहरा था। Everyone was surprised to see that he was deaf। वो जो मेढक कामयाब हुआ और बाहर निकला वो बहरा था। आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आसपास की आवाजों पर ध्यान मत दीजिए। यहां ऐसी आवाजें कम ही होंगे जो आपका हौसला बढ़ाएं। जिस तरह दरिया में स्विमिंग के लिए जरूरी है कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो और आपको तैरना आता हो, वरना आप लहरों के रहमो करम पर होंगे जो आपसे जिंदगी भी छीन सकती है। उसी तरह जिंदगी के प्रॉब्लम्स के लिए भी तैयारी की जरूरत है, और इस तैयारी का नाम माइंडसेट है। अगर आपने अपना माइंडसेट ग्रोथ वाला बना दिया तो फिर आप हर तरह के हालात का सामना कर सकेंगे। They could convert difficulties and opportunities for themselves, और मुश्किल को भी अपने लिए मौका बना सकेंगे। मेरे दोस्तों, जब भी जिंदगी में मुसीबत और प्रॉब्लम्स आए तो घबराना नहीं है,
اور نئے راستے تلاشنا ہے کہ how to convert the difficulties in an opportunities. مشکلوں کو کیسے موقع میں تبدیل کرے، مشکلوں کو کیسے موقع بنائے. انہی باتوں کے ساتھ آج میں یہیں پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ.